subjective truth. Every culture imagines life a certain way. Namaste and a very good morning to one and all present here. I, Harshvi Nagrecha, on behalf of the TGES family, welcome you all to today's morning assembly. Today is 9 December 2020 અને ગુજરાતી તિથિ પ્રમાણે આજે આસો વદ નોમ છે. So, let's begin with the morning prayers by enlightening the divinity within ourselves. श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्. नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्. कंदार्पया गणितयमित छविनव नील नीरज सुंदरम्. पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नौमि जनक सुतावरम्. भजो दीन बंधु दिनेश दानव वंशनिकन्दनम्. रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्. शिरमुकुट कुंडल तिलक चारोदार अंग विभूषणम्. आजानु भुज सरचाप धर संग्राम जित खर दोषणम्. इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम्. इति वदति तुलसीदास
श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् As Aristotle once said, myths are the lies that tell truth. I call upon Shriya Patel of Class 10I to put some light on Greek mythology and their beliefs. It is a self-composed speech. Namaste. Greek mythology is a set of stories about gods, goddesses, heroes, legends, and rituals of the ancient Greeks. Greek mythology was an integral part of the religion in Greece back then. Since the days when man has lived in caves and struggled to survive, he has wondered about the world that surrounds him. What makes the sun rise and set every day? Why are there seasons? Where does the things go when they die? To the ancient Greeks, there was a simple explanation to all these questions. It was the gods. The things that seemed unexplainable suddenly could start making sense when there were gods and goddesses involved. And the stories which the ancient Greeks created to help make sense of the universe have survived all these years to become an integral part and a treasure to the history of the Western world. Some of the most important gods the Greeks believed lived on Mount Olympus and were involved and associated with the three main domains, which were the heaven, the sky, and the sea. The 12 main gods which lived on Mount Olympus were called the Olympians. Zeus was the king of all gods. Poseidon was the god of oceans and earthquakes. Apollo was the king of archery, prophecy, and music. And on the other hand, Dionysus was the god of wine and celebration. So what did all these gods do all day long other than relax in their comfy palaces? Well, the ancient Greeks believed that their gods were involved in every aspect of daily human life, that they watched over them and everything that was going on in their lives, and sometimes did stuck their noses in, either to help a beloved devotee or to punish a person who has ignored them, or sometimes just for their own amusement. There was a great deal of fear and distrust involved with the relationship of the Greeks and their deities. But the Greeks believed with their whole heart
that their gods did exist and they will always care and protect the devout. Greek mythology consists of some of the most deep and wide theories and heroes who saved the world, like Hercules, damsels in distress, and legends like Pandora, who opened a box full of miserable things, women who turned people into stone just by looking at them, and men who developed wings just to escape prison. Some of us believe that Greek mythological stories are entirely false, but I believe there is a factual angle to it as well. Thank you. Thank you, Shreya. That was amazing. अगर अधर्मी सिर्फ समझाने से समझते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत होने नहीं देता. I call upon विद्वता मेहता of class 10I to recite महाभारत के 5 सुवर्ण तीर. नमस्ते. महाभारत के युद्ध से पहले जब पांडव वन में निवास कर रहे थे तो उनके निवास स्थान के पास एक तालाब था. उस तालाब में दुर्योधन कभी कभार स्नान करने आते थे. एक दिन दुर्योधन जब स्नान करके निकल रहे थे तो अचानक ही वहां गांधर्व आ जाते हैं. गांधर्व और दुर्योधन के बीच विवाद शुरू हो जाता है. दुर्योधन गांधर्व से पराजित होकर उनके बंदी बन जाते हैं. यह बात किसी तरह अर्जुन को पता चल जाती है और वे गांधर्व से युद्ध करके दुर्योधन को मुक्त करा देते हैं. गांधर्व से मुक्त होकर दुर्योधन अर्जुन के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और अर्जुन को उनसे एक वरदान मांगने को कहते हैं. लेकिन अर्जुन कहते हैं कि समय आने पर वे अवश्य ही ये वरदान मांग लेंगे. महाभारत के युद्ध में कौरवों के पास पांडवों की तुलना में सैन्य बल अधिक था. भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण जैसे एक से बढ़कर एक महारथी थे, मगर फिर भी पांडव विजय की ओर बढ़ते ही जा रहे थे और यह बात दुर्योधन को खूब क्रोधित करती थी. उसका सारा दोष वह भीष्म पितामह पर डालते थे. दुर्योधन कहते थे कि भीष्म पांडवों से अधिक प्रेम करते हैं और उसी के कारण वह युद्ध का संचालन जानबूझकर अच्छे ढंग से नहीं कर रहे हैं, जिसके कारण कौरवों की सेना को युद्ध में हर दिन नुकसान उठाना पड़ता है. दुर्योधन की ये बातें सुनकर भीष्म को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनकी निष्ठा पर कोई प्रश्न करे ये उनसे कतई बर्दाश्त नहीं होता था. एक दिन जब उनसे ना रहा गया तो भीष्म ने दुर्योधन को तरकस में से पड़े 5 सुवर्ण तीर निकालकर उन पर मंत्रों का उच्चारण करके दुर्योधन को अभिमंत्रित कर दिए. उसके बाद भीष्म बोले, दुर्योधन, कल इन्हीं 5 तीरों से मैं 5 पांडवों का वध करूंगा. दुर्योधन ये सुनकर खूब प्रसन्न हुए, पर उन्हें भीष्म पर भरोसा नहीं था. उन्होंने भीष्म से कहा, पितामह, आप ये 5 सुवर्ण तीर मुझे दे दीजिए. रात्रि में मैं ये तीर की सुरक्षा करूंगा और कल सुबह युद्ध के आरंभ से पहले प्रातः काल में मैं ये 5 तीर आपको सौंप दूंगा. रणभूमि में इन 5 तीरों से आप 5 पांडवों का वध कर देना. भीष्म को दुर्योधन की मन की बात समझ आ जाती है, परंतु वे तीर उन्हें सौंप देते हैं. ये अभिमंत्रित किए गए तीरों की बात कृष्ण को अपने गुप्तचरों से पता चलती है और पांडवों के प्राण बचाने के लिए वह अर्जुन को अपने दिए गए वचन की याद दिलाते हैं. भगवान श्री कृष्ण उसी समय अर्जुन को दुर्योधन के पास भेजते हैं और अर्जुन उन्हें स्मरण कराते हैं कि जब अर्जुन ने उनकी जान बचाई तब दुर्योधन ने उन्हें एक वरदान दिया था और उस वरदान के रूप में वह ये तीर मांगते हैं. दुर्योधन इस बात से हैरान हो जाता है, लेकिन क्षत्रिय होने के नाते वह 5 तीर अर्जुन को सौंप देते हैं और इसी तरह 5 पांडवों के प्राण बच जाते हैं. आभार. Thank you, Vidvata. What a fabulous performance.
खुशहाली चाव को, जो हिंदी भाषा द्वारा पॉइंट टू सोचो प्रस्तुत करेगी। वो हम सबको सोचने पे मजबूर कर देगी कि कैसे एक इंसान की 99% की अच्छाई उसकी 1% की बुराई को भी बुरा बना देती है। क्या हम हर साल रावण के पुतले को जलाने के समय पे अपने अंदर की और इस देश की बुराई और कड़वाहट को भी जला देते हैं? रामायण में श्री राम ने रावण का अंत करके सीता माता को छुड़ाया था। रावण एक महायोद्धा, शाश्वत ब्राह्मण, पुरुष ऋषि का पौत्र, एक परम शिव भक्त, महाराजनीतिज्ञ, महाप्रतापी, महापराक्रमी योद्धा, अत्यंत बलशाली, शास्त्रों का प्रखर ज्ञाता, प्रकांड विद्वान पंडित, महाज्ञानी, वास्तुकला के जानकार होने के साथ साथ बहुविद्याओं का जानकार भी था। एक बुराई आपकी सारी अच्छाइयों पर पानी फेर देती है। विद्वान, प्रकांड पंडित होने से आप अच्छे नहीं हो जाते। अच्छा होने के लिए नैतिक बल का होना आवश्यक है, कर्मों का शुद्ध होना जरूरी है। शिव के परम भक्त ने भी यम और सूर्य तक को अपना प्रताप झेलने के लिए विवश कर देने वाला प्रकांड पंडित, सभी जातियों को समान मानते हुए रक्ष जाति की स्थापना करने वाला रावण आज बुराई का प्रतीक माना जाता है। रावण का अंत करने के लिए अच्छाई के प्रतीक श्री राम को भी जन्म लेना पड़ा था। मेरा प्रश्न उन हजारों करोड़ों लोगों से है कि क्या रावण का पुतला जलाते समय आप अपने व्यक्तित्व को टटोलते हैं? धन्यवाद खुशहाली। Now, Alomi Maru will talk about a debatable issue which will force the audience to think hard, which is related to our epic Ramayana. Namaste, I'm Alomi Maru from Grade 10I and today I'll present before you the point to Socho. We all know that in the Ramayana, Lord Ram slayed Ravan for keeping Sita in his captivity. But what Ravan did, was it really wrong? He took revenge for the mortification for his sister. So was he really wrong? He kept Sita well fed and treated her with civility while she was in his lair. What Ravan did was not really wrong. We all know that Ravan was a master of all the sciences. He was a master of the Vedas and Shastra Vidya. He was a devotee of Lord Shiva and he wrote the Shiv Tandav Stotram in order to commemorate his Lord. Still, we burn his replica every year on Dashera to burn the evils, where there are hundreds of incompetent men out there committing hideous crimes. So shouldn't we be burning their replicas? While we are burning Ravana and his evil side, we are also burning his virtues. Something to think about. Thank you. That was fabulous. So by this, we come to an end of today's assembly. Get ready for the national anthem. Assembly Saudhan. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे Assembly wish Ram. Thank you all for being an adorable audience and have a wonderful Wednesday ahead.
प्रभु प्रार्थना मन प्रेम तारो आपजे खोटू काम करूं तो त्यारे मुझने वाड़ जे खोटू काम करूं तो त्यारे मुझने वाड़ जे करूं प्रभु प्रार्थना मन प्रेम तारो सुख दुख नो सार छे हार थी न हारी जाऊं एवी हिम्मत आपजे प्रभु प्रार्थना मन प्रेम तारो आपजे प्रभु प्रार्थना मन प्रेम तारो आपजे प्रेम तारो आपजे तारो आपजे प्रेम तारो आपजे प्रेम तारो आपजे प्रेम तारो आपजे प्रेम तारो